Hi everyone. Hello students. So welcome to the ninth session of this series, Important Vocabulary for IPMAT. Of course, we are doing words, roots, clusters from a very popular and a very useful book, Word Power Made Easy by Norman Lewis. All right. So far, class, I hope if you've been following all the sessions, you might have for sure noticed a perceptible, a measurable improvement in your vocabulary. Yes or no? And I'm glad आज मैच होने के बाद भी I think some people have joined us. All right, very soon I think more and more people will join us. कोई बात नहीं, अगर लाइव भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो रिकॉर्डेड सेशन फिर आपको जरूर देखना है. अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है मेक श्योर कि आप सेशंस को डेफिनेटली बाद में देखो, राइट? Take it very religiously, and now that we are towards the end of it, tomorrow is going to be the last session already. I am very excited. I think you've learned a lot if you've been, and it's important, however, this last word of caution that you should not stop your progress after the series stops, right? I think the objective was to sensitize you towards vocab development and to give you some simplified bits of words here and there so that they become a part of your active memory. So make sure that you keep using the words, make sure that you read enough, make sure that you watch something or the other in English so that you start breathing English and you start living English. All right? तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे हम, रूट्स एंड वर्ड्स ऑन राइटिंग. अगर आपको याद हो तो पहले मैंने स्पीकिंग पे भी एक चीज ली है. सी व्हेन वी स्पीक ऑफ लैंग्वेज तो लैंग्वेज के ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो ऑब्वियसली आपको राइटिंग के रिलेटेड वर्ड्स कहीं ना कहीं नॉर्मल यूसेज में आएंगे ही आएंगे. Alright, so I thought it would be a wonderful idea to weave our session around this. Okay, so we come to the first one. I think मैंने बहुत ही समरीली डिस्कस किया था स्क्रिब या स्क्रिबो रूट को. आज इसको डिटेल में अच्छे से देखते हैं और इससे कुछ बढ़िया से वर्ड्स डिराइव करते हैं. Root word scribo or scriptus, it means the same, it means to write. एंड आप देखो कि इससे बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आ रहे हैं ना. वेरी इंटरेस्टिंगली देयर आर सम वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो, बट हम आपको क्यों बताते हैं इसके बारे में, स्पेशली व्हाई डू वी इंक्लूड दीज वर्ड्स? टू मेक यू अंडरस्टैंड द रूट, टू मेक यू अप्रिशिएट द एटिमोलॉजी. ठीक है, और इसके थ्रू आप रूट को भी बेहतर याद रख पाते हो और उससे जो नए वर्ड्स मिलते हैं जो इनएविटेबली आपको हर बार मिलते हैं. इन एवरी रूट केस यू गेट सम न्यू वर्ड्स आल्सो एंड सम फेमिलियर वंस आल्सो. दैट्स अ वंडरफुल आइडिया कि अगर हम सारे वर्ड्स को लिखें. फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब. आप डिस्क्राइब किसको नहीं पता, सबको पता है, बट ये समझो कि डी अंडर के लिए यूज हो रहा है एंड स्क्राइब is to write. So when you write down something, so it literally means when you write down something. Write down what? Probably a detailed account of something. When you describe something, is you explain it or you write down in detail about it. That's describe. Script. Script भी scribe से बना, scriptus से बना. ठीक है ना? And I don't think I need to explain you the meaning of script. However, let's talk of manuscript. Manuscript बनता है from the root scriptus, which means to write, of course, and manus. What is manus? Manus means hand. You know, manicure. Manus से बना. ठीक? So manuscript मतलब के hand written script. कोई भी चीज हाथों से जो लिखी हुई है वो manuscript है, mostly before getting published. ठीक है? So that is manuscript. Most of the time हम जब भी बात करते थे किताबों की, तो back then before the printing revolution and everything, तो वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, लोग बाग हाथों से लिखते थे. ठीक है, ये देखिए मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है. ठीक है, ओके. प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब भी इसी से बना, दैट यू नो द पर्सन इज राइटिंग फॉर समथिंग कि ये करो. Okay, I'm prescribing you a few books for your vocab development and for your language enhancement. So I'm recommending. So to prescribe is to
recommend. I think आप जानते हो इस वर्ड को ऑलरेडी. Inscribe. What is inscribe? Inscribe is this. Okay, it's like a carving, है ना? That's inscribe. Inscription is the noun form. तो जब आप किसी चीज को ऐसे लिख रहे हो with a pointed object, okay, so that you know it gets engraved. To engrave, to inscribe is to engrave. और inscribe ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं inscribe a circle in this triangle. तो एक्चुअली in, scribe is write in or draw in. इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो inscribe. जब आप कार्व भी कर रहे हैं, you're drawing in the material, right? आप मटेरियल में ड्रॉ कर रहे हो. That's how the name is. Scribble. What is to scribble? Another very common word, class. Scribble. To scribble is to write something roughly. Okay, not very clearly, not with lot of efforts. Sometimes हम सिर्फ कुछ भी scribble कर रहे होते हैं while we are listening to a boring lecture. You don't know what to do. You start scribbling. That's how most of us spend our pent-up energy, right? Okay. तो क्विक रिकैप वर्ड्स का हो जाए. ऑलराइट. डिस्क्राइब आपको पता है, किसी चीज को डिटेल में बताना, किसी चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखना, राइट? स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन स्क्रिप्ट. प्रिस्क्राइब इज टू रेकमेंड समथिंग, एडवाइस समथिंग. इंस्क्राइब इज टू राइट इन, इंग्रेविंग्स के फॉर्म में, ठीक है, कार्विंग करना. Scribble is loosely, roughly कुछ चीज लिखना. Nice words, हाँ? There are a few more. Okay. So यहाँ पे देखिए PS आपने बहुत देखा होगा. PS मतलब postscript. We start with postscript. Postscript क्या होता है? At the end of your letter or your mail, you normally include postscript. ठीक है? तो ऐसा हम अलग से क्यों लिख रहे होते हैं? बिकॉज ये एक आफ्टर थॉट की तरह होता है ना? और जब आफ्टर दैट यू हैव रिटन समथिंग एंड यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट व्हिच डज नॉट अलाइन वेल विद योर मेन बॉडी और इट्स एन एडिशनल बिट दैट यू वांट टू कन्वे, तो हम पोस्टस्क्रिप्ट लिखते हैं. यहाँ पे इनका पूरी क्लोजिंग हो गई है. बेस्ट रिगार्ड्स मेरी. PS, I submitted your request for time off to Jenny this morning. Hopefully she gets back to us soon. ठीक है? So, एक एडिशनल चीज थी जो उन्हें कन्वे करना थी, तो उन्होंने इस तरह से पोस्टस्क्रिप्ट के फॉर्म में उसको लिख दिया. I hope this much is clear. All right. Prescribe was already discussed. Proscribe. अब इन दो में कंफ्यूज आपको नहीं होना है. Proscribe is to prohibit. ये वर्ड मैंने एक्शन वर्ड्स में लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी बंदे को किसी चीज से रोक रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, आपने कोई चीज बैन कर दी है, तो वो क्या हो गया? प्रोस्क्राइब करना हो गया. ठीक? When you write down clearly forbidding something, ठीक है ना, आपने forbid कर दी वो चीज, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोस्क्राइब. सब्सक्राइब, सब का मतलब होता है अंडर. Subscribe. So when you write under something in terms of a contract or something that, you know, I will take a copy of this, so that is subscription. That is to subscribe. Got it? All right. So what is to subscribe? जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने एक न्यूज़पेपर किसी मैगजीन को सब्सक्राइब कर दिया, मतलब आई एम गिविंग इन राइटिंग दैट यू नो आई एम गोइंग टू बाय दिस or I'm going to be its user for the next 6 months or for a year or whatever. That is subscribing. Scripture, we already know about a scripture, something that's been written. It's a holy book or something which is sacred. Of course, written है ना, वो books हैं, वो tomes हैं, religious way में जो लिखी गई हैं. Scribe. Scribe हम एक writer को कहते हैं.
मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग, मतलब पहले जमाने में मोस्टली ऐसा होता था जब ये सब नहीं था, कंप्यूटर्स और टाइपराइटर्स और ये सब उतने नहीं थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उस जमाने में जो लोग लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको स्क्राइब बोलते थे। आज स्क्राइब को मॉडर्न लैंग्वेज में टुडे वर्बिएज के हिसाब से स्क्राइब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्टूडेंट है, उसको मान लो हाथ में फ्रैक्चर हो गया या वो मेडिकली इल है एंड उसको लिखना है अपना एग्जाम, तो उसके साथ में एक असिस्टेंट आता है ना, एक स्टूडेंट आता है हु राइट्स द पेपर ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, उसको हम स्क्राइब बोलते हैं। जैसे यू मस्ट हैव सीन, if somebody, if a student, especially board exams में ऐसी कोई emergencies होती है उस टाइम पे, तो when a person is doing a writing work, that is called a scribe. अब वो writing work आज के डेट में मोस्टली इस वे में यूज होता है क्योंकि आज तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। पहले जो लोग कॉपीज बनाते थे या मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे या जो भी थे, दे वर कॉल्ड स्क्राइब। अगेन क्लियरली स्क्रिबो आपको दिख रहा है इसका रूट। टाइप स्क्रिप्ट पहले होता था मैन्युस्क्रिप्ट, आज को होता है टाइप स्क्रिप्ट। यानी कि ये एक कॉपी हो गई, ये एक प्रिंट हो गया किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टेक्स्ट इसका ऐसा होता है कि बिफोर अ बुक और समथिंग गेट्स पब्लिश्ड, ओके, फाइनली इन द बुक फॉर्मेट, उसका जो एक रफ ड्राफ्ट निकल के आता है विच इज ऑफ कोर्स प्रिंटेड, उसको हम टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होता है, पहले लिखते थे ना, आज वो कौन बैठ के हाथ से लिख रहा होता है, तो आजकल सब टाइप भी चल रहा है, ठीक है, इन दिस एरा लेड बाय कंप्यूटर्स। सो टाइप स्क्रिप्ट इज अ टाइप्ड डॉक्यूमेंट। मोस्टली इस वर्ड को हम यूज करते हैं किसी चीज के ऑफिशियल पब्लिशिंग से पहले जो हम एक टाइप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टाइप स्क्रिप्ट। So I think we are done with this much. Okay, Jay, I hope you're following all these words. Postscript we have already discussed. So nice and interesting and new words that we learned today were on this particular slide were proscribe, which is to prohibit, that we already know. Then we have scribe and we have typescript and postscript. आपको शायद पता ही होगा. So this was all about Scribble. And let's have an exercise. So I am waiting for your answers, people. Please solve this exercise. This is simple fill in the blanks one. All right. And you can very, very easily do this, I'm sure. चलिए फटाफट आंसर्स शेयर करिए क्लास. If you are not somehow watching me live for whatever reason, make sure that you share the answers in the comment section. मेरे को चाहिए. All right. Let's discuss. Hey Gautam, right, good. First का answer A. Very well done. That's the right answer. Wonderful, bravo. Yes. The doctor dashed me a lean diet. Described तो उतना सही नहीं लगेगा, obviously सबसे सही ऑप्शन प्रिस्क्राइब्ड ही होगा. प्रोस्क्राइब क्यों करेगा डॉक्टर यार? मतलब why would a doctor ban a lean diet? A lean diet is any day good and healthy, है ना? तो प्रिस्क्राइब उसने मुझे रेकमेंड किया कि लीन खाना खाओ, ज्यादा घी तेल वाला नहीं, ज्यादा रिच नहीं. सेकेंड, the children dash and doodled happily on the slate. डूडलिंग भी क्या होती है? एक रफ ड्रॉइंग या आपने कुछ कुछ करिए. देखो, माइंड यू देयर आर टू वर्ड्स. एक हो गया डूडल, दूसरा हो गया डॉडल. आपका एक असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए डूडल और डॉडल में क्या फर्क होता है. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डॉडल. यस आन्हा, दैट्स राइट. आन्हा अग्रवाल, ओके. क्वेश्चन नंबर 2, द चिल्ड्रन डैश एंड डूडल्ड, क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब? नो, इट हैज टू बी वेरी गुड. आन्हा एंड गौतम, आंसर शुड बी स्क्रिबल्ड. दे स्क्रिबल्ड. कुछ 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 कुछ. अब
स्लेट है, आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, दैट इज स्क्रिबलिंग. द dash of the novel leaked online before its publishing. What do you think should be the right word here? What are we talking? Are we talking of scripture? क्या scripture हो सकता है? Not at all. It has to be typescript. जब भी आप कोई word सीखते हैं, make sure that you see ample of sentences using that word. That is when you really grasp the word well. आपको समझ आता है इसको हमको कैसे use करना है, क्या इसका standard usage होगा, and eventually you become comfortable with it. Next. Obviously subscription और scripture बिल्कुल ही बेकार options हैं. The early men dashed pictures and writings on caves, which has become a great source of studying anthropology. So do we know about anthropology in the first place? What is anthropology? The study of human societies, how they have evolved, how their culture evolved, right? बेसिकली ट्रैक करना होता है राइट फ्रॉम बिगनिंग, एकदम अर्ली ऑफ द अर्लीस्ट मेन से, तब से उनका लिविंग स्टाइल क्या था. तो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सोशल साइंस और साइंस का, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ में जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ उसके साथ में उनकी सोसाइटीज भी इवॉल्व हुई और आदमी का रोल और उसकी सारी एक्टिविटीज ये सब उसके हिसाब से चेंज होती गई, राइट. तो ऑब्वियसली जब हम पिक्चर्स और राइटिंग्स केव्स में देखते हैं तब हम अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी समझ पाते हैं, पास्ट के बारे में, अर्ली मेन के एक्टिविटी, सोसाइटीज, लाइफस्टाइल के बारे में समझ पा रहे हैं. तो वो क्या कर रहे थे, लिख रहे थे. कैसे लिख रहे थे केव्स पर? ऑफ कोर्स इंस्क्राइब कर रहे थे ना, है ना, राइट. So that's why obviously inscribed would be the right answer. Proscribed तो बैन करना, forbid करना, वो नहीं हो सकता. Manuscript नहीं हो सकता, इस वे में यूज नहीं हो सकता. You've got to understand ये basic sense के कब noun है कब verb है वो भी पता होना चाहिए. चलो ठीक है. Finally, one more interesting root related to writing. And what is that? Graphene. Graphene also means to write or to record. Graphology. What is graphology? Logy तो study होता है, 10 बार बता चुकी हूँ. So I'm sure there's no surprise about it, right? Logy is study and graph is writing. मतलब राइटिंग, किसी की हैंड राइटिंग को आप स्टडी कर रहे हो एंड उसको स्टडी करके आप उस बंदे की पर्सनालिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं, उसकी स्पेसिंग, उसका फॉन्ट साइज, उसकी कुछ आपने देखा होगा लोग सिग्नेचर देखकर भी उसको काफी एनालाइज करते हैं और इसको हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं, स्टडी करना किसी की हैंड राइटिंग को देख. फोटोग्राफ, फोटो इज लाइट, ग्राफ इज राइटिंग. तो राइटिंग थ्रू लाइट. अगर फोटोग्राफी का साइंस समझते हो आप, you know the science behind photography, you would understand why this name, right? Telegraph, writing from a distance. अब आज के डेट में तो भाई मेल्स, ईमेल हो गया, इस सब चीजों से ये ऑब्सोलीट हो गई ना टेक्नोलॉजी. टेली एज अ रूट का मतलब क्या होता है? टेली एज अ रूट मीन्स डिस्टेंस. So telecommunication, communication from a distance. Telework, working from distance. ठीक है. Telephone, hearing from a distance. Telescope, watching or observing from a distance. That's simple. Photo means light, as in photons. Numerous other words can be derived from this. Biography. Bio means life. Right, class? So bio is life, graphene is to write. So writing about someone's life, how methodic, how easy it is to understand. That's the magic of root words. So जब आप किसी की लाइफ के बारे में, उसके अचीवमेंट्स, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की डिटेल्स रख रहे हैं, that is biography. इसके आगे मैं ऑटो लगा दूं तो क्या हो जाएगा? It becomes an autobiography. And auto का मतलब क्या होता है?
ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि खुद की लाइफ के बारे में लिखना। अगर मैं खुद की लाइफ के बारे में कुछ लिखती हूँ, कोई बुक लिखती हूँ, तो दैट वुड बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और मेरी लाइफ के बारे में लिखेगा वो बायोग्राफी होगी। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। कार्डियोग्राफ, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ये देखिए, ये आपको कार्डियोग्राफ दिख रहा है, इमेज में आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो जो आपको दिखता है ना, वो जो आपकी हार्ट बीट इस टाइप की, ये जो आपकी पूरी पल्स रेट और हार्ट बीट, ये सब जो रिकॉर्ड कर रहा है, राइटिंग अबाउट योर हार्ट, अब उसका नाउन फॉर्म कार्डियोग्राफी हो जाएगा। ठीक। फोनोग्राफ, फोनो, फोनो मीन्स साउंड। तो कितनी सारी एडिशनल रूट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ क्लास, इजंट दैट अमेजिंग। ये कुछ कॉमन रूट्स हैं एंड प्रोबेबली आप लोगों को इतना पता नहीं था पहले। नाउ यू नो सो मेनी एडिशनल रूट्स, दैट्स अमेजिंग। अब ये देखिए, दिस इज अ फोनोग्राफ, writing sound. This was used to record music or sounds and then on the same device फिर वो play भी करता था। यही डिवाइस जब थोड़ी सी एडवांस हुई तो बन गया ग्रामोफोन। फिर और फर्दर एडवांस होती गई तो वो कैसेट प्लेयर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स और वो सब बन गया। सो इवेंचुअली दिस इज द नेसेंट फॉर्म ऑफ इट एंड इट वाज कॉल्ड अ फोनोग्राफ। कौन सी रूट से बना? फोनो विच मीन्स साउंड एंड ग्राफ विच मीन्स टू राइट, और ग्राफीन एज वी से। अच्छे से देख लीजिए। आई होप यू टेक डाउन द वर्ड्स एवरी टाइम दैट यू अटेंड अ सेशन, यू शुड बी डूइंग इट, राइट? दैट्स रियली क्रूशियल। And finally, the last few words. Okay. So I think इसमें से कुछ words आपको पता है already. Yes, class. How many do you already know? Calligraphy and cacography. Calligraphy में कैली जो है, ठीक है, एंड कैको जो है, ये भी इंडिपेंडेंट रूट्स हैं। कैली रेफर्स टू ब्यूटिफुल, तो कैलीग्राफी इज ब्यूटिफुल राइटिंग। ये देखिए, ठीक है ना, वो जो एकदम सजावट वाली जो राइटिंग होती है, दैट इज कैलीग्राफी। ब्यूटिफुल तरीके से, उसके खुद के टूल्स होते हैं और इट्स अ टेक्निक, आई मस्ट से इट्स एन आर्ट। कैकोग्राफी इज बैड हैंड राइटिंग। कैको इज बैड एंड bad or not good. Cali is beautiful or good. So cacography is poor handwriting. Sometimes it is also used for wrong writing. Wrong writing मतलब misspellings. जब आप गलत इंग्लिश लिख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको भी कैकोग्राफी बोलते हैं। टाइपोग्राफी फाइनली। हाँ जी क्लास, बताइए टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज इंटरेस्टिंग टू नो। ये देखो, ये एग्जाम्पल है टाइपोग्राफी का, यानी कि किस तरह से आप वर्ड्स लिख रहे हो, हाउ डू यू प्लेस देम, व्हाट्स गोना बी देयर फॉन्ट लाइक, व्हाट्स गोना बी देयर जिसको हम कहते हैं स्पेसिंग, एंड किस डिजाइन, किस फॉर्मेट में लिखना है ताकि टेक्स्ट आपको अट्रैक्टिव लगे, एस्थेटिक लगे और लेजिबल भी हो एट द सेम टाइम। दैट इज टाइपोग्राफी। तो आजकल क्रिएटिव टाइपोग्राफी बहुत चल रही है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। सो क्लास, आई होप आपको ये भी रूट समझ में आ गई। आई ट्राइड माई बिट टू सिंप्लीफाई एंड फाइनली इट्स एक्सरसाइज टाइम। बस तुमको ट्रू और फॉल्स करना है एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। यस, बताइए। इफ यू अंडरस्टूड दीज वर्ड्स, you should be able to answer. If you're not watching us live, please share your answers in the comment section. Graphology analyzes the grammar, spelling, and sentence structure of written material. Seriously? No. Graphology आप writing को study कर
उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताते हो, कई बार आप एक तरह से साइकोमेट्रिक टूल की तरह यूज करते हो, राइटर के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में, उसकी पर्सनालिटी टाइप के बारे में समझने की कोशिश करते हो, दैट इज ग्राफोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। A calligrapher creates artistic forms out of alphabetical symbols. Yes, artistic forms, क्योंकि वो अल्फाबेट्स को बड़ी खूबसूरती से लिखता है, और यही तो आर्ट है कैलीग्राफी की, है ना? तो इट इज ट्रू, राइट? कैकोग्राफिक राइटिंग इज इजी टू रीड, सीरियसली इज इट? इट इज सो डर्टी, आपको समझ में ही नहीं आएगा सामने वाले ने लिखा क्या है, ठीक है? तो it's easy to read is absolutely a big false. Telegraph has been obviated by emails and smartphones. For that, you need to understand what is obviate. Obviate is to make something unnecessary. अब ऑब्वियसली जब से मेल्स आ गए तो डाक खत्म, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज खत्म, मतलब उतना उनका रहा ही नहीं। गाँव में फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, बट नॉट अदरवाइज। वैसे टेलीग्राफ ऑब्विएट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आउटडेटेड बन गया है बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दैट्स ट्रू। Typography makes a text legible and aesthetically pleasing. Isn't that true? Absolutely. Very well done. So the right answer to this is true. So today we had a nice session on learning words related to writing. हमने दो important roots करे, scribo and graphene, and उससे कुछ अच्छे अच्छे words निकाले हैं, exercise करी है. So I hope कि आपने अच्छे से इन words को absorb किया, assimilate किया. And if you like the session, please like, share and subscribe. इतना तो बनता है, goes without saying. And be with us tomorrow. कल हमारा आखिरी session होगा series का. So that's all from my side. And thank you so much.